Hello everyone, I am Dr. Sandeep Kumar, Assistant Professor in Government College for Women, Sector 16A, Faridabad. Today we will discuss United Nations World Tourism Organization, and the name of the course is Bachelor in Travel and Tourism Management, and subject name is Basics of Tourism. United Nations World Tourism Organization, as the name indicates that it is the United Nations agency which is responsible for promotion of responsible, sustainable and universally acceptable tourism. It is a leading international organization in the field of tourism. So it promotes tourism as a driver of economic growth over the world with environmental and cultural heritage preservation. United Nations World Tourism Organization is also called UNWTO. World Tourism Organization was founded 1st of November 1975 and it is United Nations specialized agency. Its headquarters is located in the capital of Spain, which is Madrid. UNWTO has five official languages as English, Spanish, French, Arabic, and Russian. For more update and information, you can visit www.unwto.org website. वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए पूरे वर्ल्ड में, ताकि टूरिज्म की वजह से पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक ग्रोथ हो, कल्चरल रिजर्वेशन हो और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए इसने ब्रॉड ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं, जिसमें इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन with tourism and protecting the environment and cultural heritage with promoting peace, prosperity and respect for human rights. In other words, we can say that the main objective of UNWTO is tourism development over the world without any discrimination on the basis of color, जेंडर, रीजन, रिलीजन, रेसिस एट्सेट्रा. एक तरह से वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सस्टेनेबल, एसेसिबल और एक तरह से रिलायबल टूरिज्म है, ताकि हर जगह सभी लोग टूरिज्म एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें और वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके. उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल और कल्चरल प्रिजर्वेशन भी बना रहे. अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए या आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में टूरिज्म मूवमेंट के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसकी जो मेंबरशिप है इसको 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें फुल मेंबर, एसोसिएट मेंबर, एफिलिएटेड मेंबर्स. फुल मेंबर, इट इज ओपन टू ऑल सोवेनियर स्टेट्स. इट मीन्स जो सभी देश जो स्वायत्तता प्राप्त कंट्रीज हैं वो इसके फुल मेंबर्स बन सकते हैं. एट प्रेजेंट देयर आर 159 कंट्रीज एज फुल मेंबर एंड इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ UNWTO. Associate members, this type of membership is open to all territories which are not responsible for their external relations. It means the membership requires the prior approval of government which assumes responsibility for their external relations. यह मेंबरशिप एक तरह से उन
टेरिटरीज के लिए है जो एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड करती है। एट प्रेजेंट देयर आर 6 टेरिटरीज विच आर एसोसिएट मेंबर्स ऑफ UNWTO। Affiliate members, as the name indicate, affiliated membership comprises a wide range of organizations and companies which are working directly or indirectly in travel and tourism sector. They may include airlines, cruise, transport, hotel, resort, restaurants, tour operators, travel agent, banking institutions, educational institutions, as well as insurance companies and other organizations which are directly or indirectly involving in tourism services. At present, there are over 500 affiliated members under UNWTO. यदि हम बात करते हैं कि रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, तो आप जैसे इसमें आपने देखा कि इसके मेंबरशिप है और इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, इनके अकॉर्डिंग वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। पूरे वर्ल्ड में चाहे लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग है या डेवलप्ड नेशंस हैं, सभी में टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश की जाती है ताकि वहाँ पर टूरिज्म की वजह से इकोनॉमिक बेनिफिट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और वहाँ का कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करते हुए इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। इसलिए वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ऐसे अनेक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है जिससे टूरिज्म डेवलप हो रहा है। फर्स्ट वन इज डेवलप इंटरकल्चरल अवेयरनेस एंड पर्सनल रिलेशनशिप। UNWTO इंटरनेशनल लेवल पर इंटरकल्चरल अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है जिससे कि वेरियस कल्चर्स के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे और टूरिज्म के लिए एक स्मूथ इन्वायरमेंट बने। एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन टूरिज्म। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों को ही टूरिज्म सर्विसेज के अंदर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुपरस्ट्रक्चर है, टूरिज्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस तैयार करने के लिए उनको एनकरेज करती है। हेल्प इन इक्वलाइज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो आइसोलेटेड एरियाज हैं, जो लोकल कम्युनिटी है, वहाँ तक टूरिज्म के जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं उनका फ़ायदा वहाँ तक मिले। डेवलप इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन वेरियस कंट्रीज़ के बीच में रिलेशनशिप को स्मूथ बनाए रखने के लिए कार्य करता है ताकि इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़े और सभी देशों का डेवलपमेंट हो। रीजनल डेवलपमेंट, जहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम है जिन एरियाज़ के अंदर, वहाँ पर वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन टूरिज्म के कंसर्न में गाइडलाइंस, नॉर्म्स, रूल एंड रेगुलेशंस और उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि न्यू डेस्टिनेशन डेवलपमेंट के लिए भी कार्य करता है ताकि वहाँ का रीजनल डेवलपमेंट हो सके। डेवलप सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। देखिए, इट इज राइटली सेड दैट टूरिज्म किल्स टूरिज्म। टूरिज्म ही टूरिज्म को खत्म कर देता है यदि वहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल टूरिज्म को हम प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पर उसको एक जो सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का जो कंसेप्ट है हम उसको लेकर नहीं चलते तो वो वहाँ पर टूरिज्म खत्म हो जाता है। इसीलिए सस्टेनेबल टूरिज्म के कंसेप्ट वहाँ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन सभी देशों के अंदर सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को
डेवलप करने की कोशिश करता है। जितने भी टूरिज्म के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रैवल ट्रेड है, चाहे ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, होटल्स, एयरलाइंस, लोकल कम्युनिटी, टूरिस्ट, सभी को सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए तैयार करता है। कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट विद इंटरनेशनल एजेंसीज फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट। नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल जितने भी टूरिज्म से जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशन हैं, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है ताकि टूरिज्म को और बेहतर तरीके से प्रमोट किया जा सके, सोसाइटल वेलफेयर किया जा सके। प्रोवाइड लीडरशिप एंड क्वालिटी एजुकेशन। टूरिज्म एक पीपल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्टर है आप कह सकते हैं, जिसमें प्रोफेशनल स्टाफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एफिलिएशन प्रोवाइड करता है ताकि वो क्वालिटेटिव ह्यूमन रिसोर्सेज को तैयार कर सकें और टूरिज्म को और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। ज़्यादातर जो डेवलपिंग नेशंस हैं वहाँ के लिए भी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स तैयार करता है। और डेस्टिनेशन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, न्यू डेस्टिनेशन डेवलपमेंट और किसी भी डेस्टिनेशन के प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस बनाता है ताकि जो कंट्रीज़ हैं उसको बेनिफिट हो, वहाँ के लोकल्स को बेनिफिट हो और डेस्टिनेशन का मैनेजमेंट अच्छे से बना रहे, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, कल्चर को, वहाँ की जो हेरिटेज है उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। प्रमोट टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए कार्य करता है। टूरिज्म की जितनी भी सप्लायर हैं या टूरिस्ट हैं उनके लिए सर्विसेज को एफिशिएंट और कन्वीनियंट बनाने के लिए टूरिज्म में टेक्नोलॉजी का जो मेंबर कंट्री हैं उनके अंदर, टूरिज्म के अंदर टेक्नोलॉजी को और प्रमोट किया जा रहा है। डेवलप स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट। आपने देखा होगा कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट जो टूरिज्म डेटाबेस तैयार करता है ताकि वहाँ के अराइवल, डिपार्चर, ग्रोथ रेट, चाहे वो इंटरनेशनल बेस पर आप देख सकते हैं, रीजनल बेस पर देख सकते हैं या नेशनल बेस पर आप देखेंगे कि अराइवल, डिपार्चर, रिसिप्ट और स्पेंड क्या रहा, इसके रिगार्डिंग पूरा स्टैटिस्टिकल डेटाबेस तैयार करने की जो UNWTO है वो प्रयासरत रहता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। टूरिज्म एक सर्विस इंडस्ट्री है और काफ़ी एक तरह से आप कह सकते हैं कि सेंसिटिव इंडस्ट्री है। टूरिज्म के अंदर जितने भी चैलेंजेस, इशू आ रहे हैं उनसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है, इसके लिए वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च करता रहता है टाइम टू टाइम और न्यू डेस्टिनेशन डेवलपमेंट के लिए काम करता है कि जिससे कि पूरे वर्ल्ड में टूरिज्म डेवलप हो। इसके साथ साथ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन कोड ऑफ कंडक्ट, डू एंड डोंट्स फॉर टूरिज्म स्टेक होल्डर्स और उनके लिए एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टूरिज्म में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करता है, उनके लिए नॉर्म्स, गाइडलाइंस तैयार की जाती हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को उसके लिए एनकरेज करता है। इसके अलावा और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन टूरिज्म के प्रमोशन के लिए करता रहता है, जैसे कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस जो इंटरनेशनल लेवल पर भी हो सकती हैं, वो किसी रीजनल लेवल पर भी हो सकती हैं। तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के कार्य करता है और आप इन सभी
पॉइंट्स के बिहाफ पर आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अलग अलग सेगमेंट के बेस पर काम कर रहा है, ताकि टूरिज्म की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ किसी भी डेस्टिनेशंस या किसी भी डेस्टिनेशन की कल्चर और इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।